Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 faculty book chapter number 7 chemical equilibrium exercise. Now question number 20 define chemical equilibrium. Chemical equilibrium क्या होता है जी? Chemical equilibrium is a state of chemical reaction where the concentration of reactants and products no longer change with time. केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है केमिकल रिएक्शन की जहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होती. In other words, the forward and backward reactions occur at the same rate and the concentration of the reactants and products remain constant. दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो सेम रेट के ऊपर होने स्टार्ट हो जाता है. At equilibrium, the amount of reactants and products are in dynamic balance, meaning that the rate of the forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. जो हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि वो डायनामिक बैलेंस हो जाती है. कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है लेकिन विजिबली कोई चेंज वहां पे नहीं आ रहा होता. मीनिंग दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. Now question number 3 is state necessary conditions for the equilibrium and the ways that equilibrium can be recognized. Conditions for equilibrium, the necessary conditions for a chemical equilibrium are एक तो है जी closed system. Closed system होना चाहिए. The system must be closed, meaning that no substance can enter or leave the system during the reaction. This ensures that the concentration of the reactants and product remains constant. Reversible reaction. The reaction must be reversible, meaning that the reactants can form product and product can reform the reactant. जो हमारा reaction है वो reversible होना चाहिए. अगर वो one direction में होगा तो equilibrium हम achieve नहीं कर सकते. रिवर्स रिएक्शन में मतलब क्या है, जो हमारे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट को अगेन बैक टू रिएक्टेंट चेंज होना पड़ेगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. Constant temperature, the temperature must remain constant during the reaction. This is because temperature affects the rate of the reaction and can shift the equilibrium position. और जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे इंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर जो वो अफेक्ट आएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी. Next is the equilibrium state. The system must reach a state of equilibrium where the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. हमारा जो रिएक्शन है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रीच करना पड़ेगा. इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब, जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू है जी. अब हमने डिस्कस करना है जी वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम. Constant concentration at equilibrium, the concentration of the reactants and products remains constant. जब हमारा reaction equilibrium में है तो क्या होगा जी, concentration क्या होगी जी reactant और product की constant होगी. No visible change. The systems appear to be at rest with no visible changes occurring. जो हमारा सिस्टम है वो at rest हमें दिखाई देगा, उसके अंदर कोई visible change नहीं आ रही होगी. Equilibrium constant. The equilibrium constant has a constant value indicating that the ratio of the concentration of the reactants and product is constant. जो equilibrium constant है वो क्या है जी, constant value है, और इससे हमारे पास क्या है जी, जो concentration है product की और reactant की वो same होगी, constant होगी. Le Chatelier principle. If the system is disturbed, it will respond in a way to counteract the disturbance and restore equilibrium. अगर हम equilibrium को disturb करेंगे तो हमारा जो system है वो disturbance को ख़त्म करने के लिए उसके against काम करेगा ताकि वो equilibrium को restore कर सके. This principle can be used to predict the direction of the shift of equilibrium and system is disturbed. और हम इस प्रिंसिपल की मदद से डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम को मालूम कर सकते हैं जब हमने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की है इन ए सिस्टम. Next is reversibility. If the reactants are added to a system at equilibrium, then reaction will shift to the right, forming more products. If the products are added, the reaction will shift to the left, forming more reactants. Reaction में क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए. रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट्स को ऐड करें तो जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, और अगर हम प्रोडक्ट को ऐड करें तो हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए.
Now question number 4 है जी, describe the microscopic event that occur when a chemical system is in equilibrium. Microscopic events that occur at equilibrium. On microscopic level, there is excited activity. Individual molecules of reactant continue to combine. Individual molecules of product also continue to combine. But the rate of one process is exactly balanced by the rate of the other process. Therefore, this is a dynamic equilibrium. The system is in dynamic equilibrium because individual molecules directly react continuously, but the rate of forward and reverse reaction are equal. It is in equilibrium because no net change occur. माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के वो कंटिन्यू कर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं, और इसी तरह जो हमारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट के वो भी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं। लेकिन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स वो इन मोशन तो हैं लेकिन जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, दोनों डायरेक्शंस में सेम है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, रिएक्शन कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया, आयन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं जी रिएक्शन कोएफिशिएंट। The reaction quotient is a measure of the relative amount of reactant and product in a chemical reaction at a given point in time and is calculated by taking the product of the concentrations of the product raised to the stoichiometric coefficient divided by the product of the concentration of the reactant raised to the stoichiometric coefficient. जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो हमें बताता है कि जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है इन केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट लेके और जो उनके मोल्स हैं उनको इन पावर लिख के उसको डिवाइड करते हैं, जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट और उनके मोल्स को पावर में लिख के कैलकुलेशंस करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो होता है रिएक्शन क्वेश्चन। It is used to determine the direction of the reaction with Q being compared to the equilibrium constant Kc, और हम रिएक्शन क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग रिएक्शन क्वेश्चन जो कि Q है बाय Kc या equilibrium constant. If Q is greater than K, the reaction will shift to the left to reach equilibrium, and if Q is less than K, the reaction will shift to the right to reach equilibrium. अगर हमारा Q जो वो Kc से बड़ा है तो हमारा जो रिएक्शन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट करेगा टू रीच इक्विलिब्रियम, और अगर हमारा Q जो है वो Kc से छोटे तो हमारा रिएक्शन जो है वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करेगा टू रीच इक्विलिब्रियम। नाउ solubility product. The solubility product KSP is a measure of the extent to which aspiringly soluble salts will dissolve in water at a given temperature. Solubility product measure होती है कि हमारे पास कोई भी salt कितना soluble है in water at a given temperature. It is defined as a product of the concentration of the ions in saturated solution with each concentration raised to its stoichiometric coefficient and is used to calculate the solubility of salt. और इसको भी हम सेम केसी की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है वो इन न्यूमरेटर आएंगे और उनके जो मोल्स इन पावर आएंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स जितने भी हैं और उनके जो मोल्स हैं इन पावर, और रिमाइंडर जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास आयन प्रोडक्ट जो कि QSP है लेस देन KSP है तो सॉल्यूशन क्या है जी, अनसैचुरेटेड है और हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन अगर QSP यानी कि आयन प्रोडक्ट वो इक्वल है KSP जो कि है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है जी, सैचुरेटेड है और कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हमारे पास QSP ग्रेटर है KSP के तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या सुपर सैचुरेटेड या सुपर हीटेड सॉल्यूशन है, और हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, प्रेसिपिटेट आउट होगी फ्रॉम द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी कॉमन आयन इफेक्ट। The common ion effect occurs when the additions of an ion that is common to both the reactant and product in a solution shift the equilibrium position of the reaction. कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर आयन दोनों में कॉमन है, जब हम उसको ऐड करते हैं तो उससे जो इफेक्ट आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, उस इफेक्ट को हम कहते हैं जी कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज बिकॉज the added ion decrease the solubility of the salt by decreasing the ion product. इससे क्या होगा, जब हमने आयन की कंसंट्रेशन ऐड की मजीद तो उससे क्या होगा,
solubility ऑफ सॉल्ट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो हमारा सिस्टम है वो शिफ्ट करेगा टू काउंटरएक्ट द डिक्रीज इन द आयन प्रोडक्ट बाय फॉर्मिंग मोर सॉलिड, और हमारा जो रिएक्शन है वो मोर सॉलिड को फॉर्म करेगा ताकि वो जो हमारे पास डिक्रीज इन आयन प्रोडक्ट हुआ है उसको काउंटर एक्ट किया जा सके। For example, adding chloride ion to a saturated solution of silver chloride will cause more silver chloride to precipitate out of solution। जो हमारे पास क्लोराइड आयन को ऐड करेंगे इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो हमारे पास क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो precipitate आउट हो जाएगा जी फ्रॉम द सॉल्यूशन। Now heterogeneous equilibria. Heterogeneous equilibria are equilibrium systems that involve reactants and products in different phases such as solid, liquids and gases। जो heterogeneous equilibria होता है वो क्या होता है जी, ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेजेस में अगर होंगे तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, लेकिन हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट फेजेस में होने चाहिए। For example, the equilibrium between a gas and a solid, such as the reaction between nitrogen gas and solid ammonia to form gaseous ammonia, involves reactants and products in different phases। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है बिटवीन अ गैस एंड सॉलिड, यहाँ पे हमने क्या लिया जी, नाइट्रोजन गैस को हमने रिएक्ट करवाया है टू फॉर्म गैसियस अमोनिया, और हमने नाइट्रोजन गैस को किससे रिएक्ट करवाया, सॉलिड अमोनिया से। अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन गैस है और सॉलिड अमोनिया, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है जी, गैसियस अमोनिया। तो अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों क्या है, डिफरेंट फेजेस में, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, इन हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। आयन प्रोडक्ट, द आयन प्रोडक्ट QSP इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। QSP से हम क्या मेजर कर सकते हैं जी, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन टाइम, हम आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सेम KSP की तरह ही कैलकुलेट होगी, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो इन न्यूमरेटर आएंगे और उनके जो मोल्स हैं वो इन पावर आएंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो इन डिनोमिनेटर आएंगे और उनके जो मोल्स हैं वो इन पावर आएंगे, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा जी, आयन प्रोडक्ट। KSP क्या करता है, जो हमारे पास KSP है वो हमारा कंसंट्रेशन देता है एट इक्विलिब्रियम, जबकि आयन प्रोडक्ट हमें कंसंट्रेशन देगा एट एनी पॉइंट इन अ टाइम। The iron product is used to determine the direction of reaction with QSP being compared to KSP। iron products हम direction of reaction को determine करवा सकते हैं by comparing iron product with solubility product KSP। अगर iron product जो है वो KSP यानी कि solubility product से छोटा है तो क्या होगा, जो हमारा solution unsaturated और हम more amount of salt को dissolve करवा सकते हैं। Similarly अगर हमारे पास QSP इक्वल है KSP के तो हमारे पास सोल्यूशन जो सैचुरेटेड है और जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो क्या है, एट इक्विलिब्रियम है। नंबर 3 है जी, इफ QSP is greater than KSP the solution is super saturated and excess salt will precipitate out of solution। Now question number 6, explain industrial applications of Lee-Chatelier principle using Haber's process as an example। Applications of Lee-Chatelier's principles। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है जी, ली चैटलियर प्रिंसिपल states that if system at equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration of reactants or product, then equilibrium will shift in a way that tends to counteract the imposed change। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमने उसकी कंडीशंस टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा ताकि वो काउंटर एक्ट कर सके जो हमने चेंज क्रिएट किया है इन सिस्टम। This principle has important application in the industry, especially in the process that involve chemical reactions at equilibrium। और इस application की बहुत ज़्यादा applications हैं on industrial level। ज़्यादातर जहाँ पे हमारे पास chemical reactions at equilibrium जहाँ पे हम डील कर रहे हैं वहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल की जो है वो एक great application मौजूद है। One example of an industrial application of Lee-Chatelier principle is the Haber process, which is used to produce ammonia from nitrogen and hydrogen। Haber process क्या होता है जी, हम वहाँ पे अमोनिया को प्रोड्यूस कराते हैं by reacting nitrogen and hydrogen। The Haber process is exothermic reaction, meaning that it releases heat when it occurs। The reaction can be represented by the following equation। जो हमारे पास reaction है वो क्या है जी, N2 plus 3H2 will get converted into 2NH3 plus heat। Now
ये वाला जो रिएक्शन है ये कैरिड आउट होता है एट हाई प्रेशर अराउंड 200 एटमॉस्फेयर और हाई टेम्परेचर अराउंड 450 टू 550 डिग्री सेल्सियस यूजिंग एन आयरन कैटलिस्ट। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो क्या है जी, आयरन Fe. These conditions favor the forward reaction, the production of ammonia, because increasing pressure tends to favor the side with fewer gas molecules, and increasing temperature favors the endothermic reaction, the formation of ammonia, which absorbs heat. अब जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रिएक्शन जो है वो उस साइड की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे पास मोल्स कम है। अब जो हमारे पास रिएक्शन था वो क्या था जी, N2 plus 3H2 will get converted into 2NH3। अब N2 का 1 मोल है और H2 के कितने हैं जी, 3 मोल्स, तो 1 plus 3 4, और जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं जी, 2 मोल्स। तो हमारा जो सिस्टम है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगा, हमारे पास ग्रेट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो towards a forward direction shift होगा। However, the reaction is also limited by the availability of reactants. If the concentration of N2 or H2 is too low, the yields of ammonia will be reduced. और हमारा जो रिएक्शन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर भी ग्रेटली डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन या हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास जो यील्ड ऑफ अमोनिया वो भी स्मॉलर होगा। To counteract this, excess N2 and H2 are added to reaction mixture and the ammonia is continuously removed as it is formed. और अगर हमने इस चेंज को ख़त्म करवाना है तो हमारा क्या करना पड़ेगा, N2 और H2 की जो ज़्यादा अमाउंट हमें ऐड करनी पड़ेगी और हमें कंटिन्यूसली जो हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो रहा है उसको रिमूव करवाना पड़ेगा। This helps to maintain the high concentration of reactant and ensure that equilibrium position is not shifted too far to the left towards the reactants. इससे क्या होगा, जो हमारा रिएक्शन है वो ज़्यादा टाइम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा rather than going back to reverse direction, ताकि हमारे पास reactant प्रोड्यूस हो। If the temperature is increased too much, the equilibrium will shift to the left towards the reactant, reducing the yield of ammonia. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा जी, towards the left शिफ्ट होगा और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जी, yield of ammonia जो है वो कम हो जाएगी। To counteract this, the reaction is carried out in a heat exchanger which cools the reaction mixture and removes the heat generated by the reaction. This helps to maintain the temperature at the optimum level for the reaction. Now, question number 7 है जी, propose microscopic event that account for absorbed microscopic changes that take place during shift in equilibrium. Change in temperature. If the temperature of a system at equilibrium is increased, the equilibrium will shift in a direction that absorbs heat. This can be understood in terms of the microscopic event that take place when bonds are formed or broken during the reaction. जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, और इस चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय the event during the bond formation and bond breaking. For example, in an exothermic reaction, heat is released when bonds are formed. If the temperature is increased, this will favor the breaking of bonds, which will shift the equilibrium in a direction that absorbs heat. जब हम exothermic reaction के अंदर heat को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड अकर होगी और हमारा जो सिस्टम है उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे हमारे पास हीट एब्सॉर्ब हो रही होगी। Change in pressure. If the pressure of the system at equilibrium is increased, the equilibrium will shift in a direction that reduces the number of moles of gas. जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जहां पे हमारे पास लेस मोल्स प्रेजेंट हैं। This can be understood in terms of microscopic events that take place when gases are compressed or expanded. और इस event को हम observe कर सकते हैं जब हम गैस को compress या expand करवाते हैं। For example, when gas are compressed, the distance between the particles decreases. जब हम गैस को compress करेंगे तो जो particles के दरमियान distance है वो क्या होगा जी, कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज कर देगी और पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे और वो मिलके बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है इक्विलिब्रियम का वो टुवर्ड्स लेस मोल्स ऑफ गैस शिफ्ट हो जाएगा। नाउ चेंज इन कंसंट्रेशन.
If the concentration of reactant or product in a system at equilibrium is increased, the equilibrium will shift in a direction that reduces the concentration of that species. अगर हम concentration को change करते हैं product या reactant की concentration को increase करते हैं तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारा जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे हमारे पास जो हमने कंसंट्रेशन ऐड किया है वो रिड्यूस हो रही हो. दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेंट दैट टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम. और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड या रिमूव कर रहे होते हैं उस दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक इवेंट अकर हो रहा होता है. For example, if the concentration of reactant is increased, there will be more collision between the reactants and other species, which will shift the equilibrium in the direction that reduces the concentration of the reactant. जब हम concentration of reactant को increase करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, reactant की concentration increase हो जाएगी और हमारे जो collision है between the reactant molecules क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी और हमारा जो reaction है वो towards the forward direction move करेगा और हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्या होगा जी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड डेंसिटी में दी 1.049 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज मिक्स्ड विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल डेंसिटी में दी 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. What is the equilibrium composition of the mixture at 25 degrees Celsius? KCM में दी है 4. हमसे इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पूछी गई है मिक्सचर की एट 25 डिग्री सेल्सियस. रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल कैसे लिखा जाता है, CH3COOH plus C2H5OH will get converted into CH3COO C2H5 plus H2O. अब यहाँ पे ये क्या है जी, CH3COOH ये क्या है, एसिटिक एसिड है और C2H5OH क्या है, इथेनॉल है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज KCl कैसे लिखेंगे जी, CH3COO C2H5 मल्टीप्लाई बाय H2O डिवाइडेड बाय CH3COOH मल्टीप्लाई बाय C2H5OH. At the beginning of the reaction, the concentration of CH3COOH and C2H5OH are both 50 centimeter cube. जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम है CH3COOH का और C2H5OH का, उसको अब हमने कन्वर्ट करना है मास और फिर कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब में. और ये हम कैसे करेंगे जी, हम डेंसिटी को यूज करेंगे. मास ऑफ CH3COOH क्या होगा जी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है जी, मास बाय वॉल्यूम. तो मास ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगी जी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.049 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब हम करेंगे तो मास आ जाएगा जी हमारे पास 52.45 ग्राम और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH आ जाएगी जी मास बाय वॉल्यूम. तो 52.45 मास हमने फाइंड आउट कर लिया, डिवाइड हम करेंगे इसको जी 0.050 जो कि वॉल्यूम है इन डीएम क्यूब. तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी जी 1.049 मोल पर डीएम क्यूब. सिमिलरली हम करेंगे जी C2H5OH के लिए. मास ऑफ C2H5OH आ जाएगा जी 39.45 ग्राम और कंसंट्रेशन आ जाएगी जो हमारे पास 0.789 मोल्स पर डीएम क्यूब. नाउ जो हमारे पास रिएक्शन था वो उसमें क्या थे जी, सबके 1 मोल्स थे. तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं जब हमारा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगी बाय x और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगी बाय x. तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं जी, CH3COH की लिख सकते हैं 1.049 माइनस x और C2H5OH की हम लिख सकते हैं जी 0.789 माइनस x. CH3COO C2H5 की हम लिख सकते हैं जी x मोल्स और H2O की हम लिख सकते हैं जी x मोल, क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है जी, 0 होती है. लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम में उस सिस्टम को लाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी जी बाय x मोल. नाउ जब हम इन वैल्यूज को इन इक्वेशन ऑफ KC पुट करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है जी, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.049 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 0.789 माइनस x. यहाँ पे क्या जी 4 क्या है, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्ट. जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा जी 0.255 मोल पर डीएम क्यूब. नाउ जब हम इस x की वैल्यू को इनटू
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी CH3COOH की कंसंट्रेशन आ जाएगी जी 0.794 मोल पर डीएम क्यूब, C2H5OH की आ जाएगी जी 0.534 मोल पर डीएम क्यूब, CH3COOC2H5 की आ जाएगी जी 0.255 मोल पर डीएम क्यूब और H2O की आ जाएगी जी 0.255 मोल पर डीएम क्यूब. Now question number 9 is you write Kc and Kp expression for the following reaction. Reaction 1 is SO2 plus 1 by 2 O2 will get converted into SO3. अब यहाँ पे क्या है जी, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है SO3 है और रिएक्टेंट क्या है जी SO2 है और O2 है जिसका 1 by 2 मोल. तो इक्वेशन सेम रहेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन SO2 plus 1 by 2 O2 will get converted into SO3. अब Kc हम क्या लिखते हैं जी, Kc में हम प्रोडक्ट को इन न्यूमरेटर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं उसको रिएक्टेंट के मोल्स के साथ और मोल्स को हम इन पावर ले आते हैं. तो इसकी जो केसी बनेगी वो क्या बनेगी जी SO3 डिवाइडेड बाय SO2 मल्टीप्लाई बाय O2 रेज टू पावर 1 by 2. अब केपी एक्सप्रेशन क्या होते हैं जी, जब हम केसी को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है वो होता है जी केपी एक्सप्रेशन. द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज Kp क्या हो जाएगा जी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू पावर 1 by 2, where P of SO3, P of SO2 and P of O2 are partial pressure of SO3, SO2 and O2. Now reaction number 2 है जी H2O plus Cl2O will get converted into 2HOCl. अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है जी HOCl जिसके 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं जी हमारे पास H2O और Cl2O. अब जो इसकी इक्वेशन है वो भी सेम रहेगी H2O plus Cl2O will get converted into 2HOCl. तो Kc जो आएगी इसकी वो क्या आएगी जी HOCl raised to power 2 divided by H2O multiplied by Cl2O. और Kp क्या आएगी, Kp आ जाएगी जी पार्शियल प्रेशर ऑफ HOCl raised to power 2 divided by partial pressure of H2O raised multiplied by partial pressure of Cl2O, where P of HOCl and P of H2O and P of Cl2 are partial pressure of HOCl, H2O and Cl2O respectively. Now reaction number 3 है जी O3 will get converted into O2 plus O. अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है जी O2 है और O है और रिएक्टेंट में क्या है जी O3 है. तो जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे वो सेम रहेगी जी O3 will get converted into O2 plus O. तो इसकी केसी क्या बनेगी जी, इसकी केसी बनेगी जी O2 into O divided by O3. और केपी एक्सप्रेशन क्या बनेगा जी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O3, where P of O2, P of O and P of O3 are partial pressure of O2, O and O3 respectively. Now reaction number 4 है जी O3 will get converted into 3 by 2 O2. अब जो इसकी इक्वेशन है वो क्या है जी O3 will get converted into 3 by 2 O2 और इसकी जो केसी बनेगी वो क्या बनेगी जी O2 raised to power 3 by 2 divided by O3 और Kp इसकी बनेगी जी the partial pressure of O2 raised to power 3 by 2 divided by partial pressure of O3, where P of O2 and P of O3 are partial pressure of O3 and O2. Now reaction number 5 है जी Fe3O4 plus H will get converted into 3FeO plus H2O. अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे Fe3O4 जो है वो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है. तो इक्वेशन जो है इसकी सेम रहेगी Fe3O4 plus H will get converted into 3FeO plus H2O. लेकिन यहाँ पे अब केसी में क्या होगा जी, केसी में क्योंकि हम खाली जो हमारे पास स्पीशीज गैसियस फेज में होती है उसको लिस्ट डाउन करते हैं तो हमारे पास केसी बन जाएगी जी FeO raised to power 3 multiply by H2O divided by H2, क्योंकि Fe3O4 जो है वो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है. जबकि Kp एक्सप्रेशन क्या बनेगा जी पार्शियल प्रेशर ऑफ FeO raised to power 3 multiply by partial pressure of H2 divided by partial pressure of H2, where P of FeO, P of H2O and P of H2 are partial pressure of FeO, H2O and H2 respectively. Now reaction number 6 है जी 2NO plus Cl2 will get converted into 2NOCl.
यहाँ पे सारी स्पीसीज जो है इन फॉर्म ऑफ गैस हैं, तो हमारे पास जो इसकी केसी बनेगी वो क्या बनेगी जी, NOCl रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय NO पावर 2 मल्टीप्लाई बाय Cl2, और Kp बनेगी जी पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, where P of NOCl, P of NO and P of Cl2 are partial pressure of NOCl, NO and Cl2 respectively. Now reaction number 7 है जी, CaCO3 will get converted into CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे CaCO3 और CaO इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, तो Kc में हम इनको लिस्ट नहीं करेंगे, तो इसकी जो है Kc बन जाएगी जी, Kc इज इक्वल टू CO2, और Kp एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वेयर P ऑफ CO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नाउ रिएक्शन नंबर 8 है जी, C प्लस H2O विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO प्लस H2। अब यहाँ पे कार्बन जब इन फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, तो Kc में हम इसको लिस्ट डाउन नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो इसकी Kc बनेगी वो क्या बनेगी जी, Kc इज इक्वल टू CO प्लस CO इंटू H2 डिवाइडेड बाई H2O। तो Kp एक्सप्रेशन क्या बनेगा जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, वेयर P ऑफ CO, P ऑफ H2 and P of H2O are partial pressure of CO, H2 and H2O respectively। टिल नाउ आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which we upload in future, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। So till next video, take care, Allah Hafiz।